Hello students, welcome back to my channel. This is Dipali and in this video we will learn operations on NumPy. We have discussed one of the operation array slicing on 1D and 2D arrays in the previous video. So in this video we will learn the further operations on NumPy array. And I hope students all of you are fine and safe at your home. So let's start the today's class. So the operation which we are going to learn first today, that is joins in array. Second, it is written because first operation was array slicing, which I have already covered in the previous video. So with the term joins, it is clear to join something. Fine, that means to combine something. So joins in array means we are going to combine two arrays together, or we are going to join two arrays together. So what is the definition of joins in array? Joining of two arrays in NumPy is done using concatenate function. So which function we are used in NumPy to combining two different arrays? We are using concatenate function. So what is the meaning of concatenate? Concat करना मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ना. जैसे हमने फंक्शन MySQL में भी पढ़ा था concatenate फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम या concatenate these और this कॉलम. सो concatenate का बेसिकली यूज़ क्या है? दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ कंबाइन करना. क्लियर स्टूडेंट्स? Then this function is used to join two or more arrays of the same shape. This is very important line. This function is used to join two or more arrays of the same shape. That means if your one array is 2 multiplied by 3 and your another array is also 2 multiplied by 3, that means both the arrays are having the 6 elements. Both the arrays are having 2 rows and 3 columns. In the another array also 2 rows and 3 columns. Then you can combine those arrays easily. Fine students, because they are having same shape. But if one array you are having 2 multiplied by 3, another array you are having 3 multiplied by 3 or 2 multiplied by 2, so these array you cannot combine and join, because जो array का shape है वो क्या है? different हो जाएगा. because एक में हम 2 multiplied by 3 ले रहे हैं, that means 2 rows है और 3 columns है. एक में मैंने क्या 3 multiplied by 3, 3 rows हो गई और 3 columns हो गए. तो इस टाइप के एरेज हम यहाँ पे कंबाइन नहीं कर पाते. हम वही एरेज कंबाइन करेंगे एक साथ कॉन्कैटिनेट फंक्शन के थ्रू जिनका शेप सेम होगा. क्लियर? सो ज्वाइनिंग मीन्स पुटिंग कंटेंट्स ऑफ टू और मोर एरेज इन अ सिंगल एरे. दो अलग अलग एरेज हैं, उन दोनों अलग अलग एरेज के जो कंटेंट है हमें क्या करने हैं? एक सिंगल एरे के अंदर कंबाइन करने हैं. क्लियर? So what is the syntax of doing this particular thing? You have to first obviously import the NumPy, and on the NumPy object you have to call the concatenate function, and then in this a1 a2 what it is basically, it is the different array names. So arrays कुछ भी हो सकते हैं, जैसे a1 है, a2 है, a3 है, a4 है. तो जितने भी आपके arrays हैं, अगर यहाँ पे a1 a2 लिया है एंड सो ऑन, दैट मीन्स यहाँ पे दो एरे को आप ज्वाइन कर सकते हो, 3 को कर सकते हो, 4 को कर सकते हो, दैट डिपेंड्स. उसके बाद आपको एक और पैरामीटर पास करना होता है जो है एक्सेस. बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस होती है वो 0 होती है. ठीक है? तो दो एक्सेस होती है, एक होती है 0 और एक एक्सेस होती है 1. दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? सो बेसिकली होता क्या है वैसे एक्सेस 0 और 1 मैं आपको थियोरेटिकली भी बता देती हूँ, देन वी विल सी द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट. एक्सेस 0 मैंने आपको क्या बताया? बाय डिफॉल्ट एक्सेस क्या लेता है? 0 लेता है. दैट मीन्स वो आपके दो एरेज को कॉन्कैटिनेट करेगा. किसके बेसिस पे? रोज के बेसिस पे. फाइन. सो इट विल कॉन्कैटिनेट टू मैट्रिसेस अलोंग रोज एक्सेस. फाइन. और अगर हम एरे 1 लिखते हैं तो एरे 1 में वो क्या करेगा? कॉन्कैटिनेट करेगा दो एरेज को कॉलम के एक्सेस पे. क्लियर? एक में 0 देंगे तो रोज के एक्सिस पे करेगा और 1 देंगे तो कॉलम के एक्सिस पे करेगा. क्या डिफरेंस है वो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं. ठीक है? सो जस्ट आई एम ओपनिंग द पाइथन, दैट इज द पाइथन विंडो. सो बेसिकली हियर आई एम गोइंग टू राइट द कोड. what I have to write first, that I have to import the package.
So I am going to write import numpy as, give the alias name np if you want, otherwise you can leave this line. Fine. Now afterwards what you have to write, simple syntax you have to write, that is you have to give different arrays. Fine students. So here I am going to create one variable a. फाइन, एरे टाइप का एक वेरिएबल लिया a, इसमें np के ऑब्जेक्ट पे क्या क्रिएट करना है, फर्स्ट एरे क्रिएट करना है. क्लियर. तो फर्स्ट एरे के अंदर हम एलिमेंट्स कितने डाल रहे हैं, मैं अभी जो एरे ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 2x2 का, 2 × 2. फाइन. सो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ये है, एक और ब्रैकेट लगानी होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे. देन 3, 6 ले लेते हैं. देन नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं 4, 8. फाइन. सो दीज ऑल एलिमेंट्स आई हैव टेकन हियर. द नेक्स्ट लाइन what we have to do, simply I am going to print this particular array right now. So for printing the array what I have to write, I have to write the print command, and inside that I have to pass the array type variable. Clear. So what I have done till here, I have just imported numpy package, then I have created one array which is having a size that is 2 × 3. और अगर हम 2x2 का बनाना चाहते हैं इसको, जैसे मैंने कहा था 2x2 का बना रहे हैं, 2 × 2 का, तो एक एलिमेंट इसमें से कम कर देते हैं. ठीक है. बाद में एक 3 × 3 का एरे भी देख लेंगे, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 × 2 का एरे कर रहे हैं. दैट मीन्स टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे. फाइन. अब इसके बाद हमने क्या करा, पहले यहाँ तक स्टूडेंट्स रन करके देख लेते हैं इसको. सेव करते हैं. सेव कर रही हूँ मैं test.py. ऑलरेडी अगर फाइल एग्जिस्ट है तो हम तब भी आई वॉन्ट टू सेव एंड आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस फाइल. फाइन. सो जस्ट सी द आउटपुट. आपका एरेस ने प्रिंट करा दिया. क्लियर. अब आगे क्या करना है, अभी तो हमने क्या करा है, सिंपली एक एरे क्रिएट करा है. अब एक और फंक्शन कॉल कराते हैं, प्रिंट कराते हैं क्या, a.shape. फाइन. व्हाट फंक्शन वी आर यूजिंग राइट नाउ, a.shape. सेव करते हैं, Ctrl+S एंड रन. ठीक है. तो शेप क्या करता है, बेसिकली शेप आपको साइज बताता है एरे का. सो व्हाट इट हैज गिवन अस, इट हैज गिवन बैक द शेप ऑफ द एरे. दैट मीन्स 2x2 का एरे था ना हमारा, 2 × 2 का. दैट मीन्स इसने क्या करा, शेप रिटर्न करके दे दी. फाइन. सो इसी तरीके से एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं एरे टाइप का. तो एक और वेरिएबल के लिए सेम हमें क्या करना है, मैंने बी टाइप का एक वेरिएबल ले लिया. फाइन. एंड सेम एनपी के ऑब्जेक्ट पे एरे क्रिएट कर दो विद द सेम थिंग. I am just mentioning 1, 2, and here I am writing 3, 4. Fine students. So same thing what we have to do now, we have to print this particular array. Again we have to print this particular array. So I am just copying these 2 lines because the same thing we have to perform. Only change the variable name over here. So I have just doing the changes, b.shape. Fine. So first we are going to run till here. Save and run. तो 2 एरे, दोनों का साइज और शेप क्या है, इक्वल है. फाइन. तो जैसे हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि वी कैन कॉन्कैटिनेट 2 एरेज हुज शेप शुड बी सेम. सो इन दोनों एरेज का शेप क्या है, सेम है. क्लियर. तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन एरेज को कॉन्कैटिनेट करना है. फाइन. सो मैंने लिखा कॉन्कैटिनेट करने के लिए, एंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ एनपी आई एम जस्ट कॉलिंग कॉन्कैटिनेट फंक्शन. फाइन. सो आई हैव जस्ट कॉल्ड द कॉन्कैटिनेट फंक्शन. क्या कॉन्कैटिनेट करना है,
वो आप ब्रैकेट्स में मेंशन करो, ए एरे और बी एरे, दो एरेज हैं ए एंड बी। बाय डिफॉल्ट एक्सेस क्या ले लेगा ये, बाय डिफॉल्ट एक्सेस क्या लेगा, 0 एक्सेस लेगा। तो अभी फिलहाल मैंने एक्सेस मेंशन नहीं करा एंड प्रिंट करा देते हैं किसको, कॉन को। टिल हियर इट्स क्लियर टू ऑल, फाइन। और इसी के साथ प्रिंट करा देते हैं कॉन डॉट शेप, कि जो हमारा कॉन एरे आ रहा है कॉनकैटिनेट होके उसकी शेप क्या है, फाइन। सो आई एम जस्ट सेविंग इट एंड रनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सो जस्ट सी स्टूडेंट्स, करा क्या इसने, पहला एरे रिटर्न करा, ए टाइप का जो एरे लिया था मैंने उसमें 4 एलिमेंट दिए थे, उसका जो साइज है वो 2x2 का है। दूसरा एरे इसने रिटर्न करा जो मैंने बी में स्टोर करा था, इसका साइज 2x2 है। देन मैंने क्या करा, इन दोनों एरेज का हमने क्या करा, कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो जैसे मैंने आपको कहा था ये क्या करता है, रो वाइज कॉन्कैटिनेशन करता है। 0 एक्सेस है ना बाय डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट एक्सेस 0 होता है, तो वो क्या करता है, रो वाइज कॉन्कैटिनेट करता है। तो जब आप इन दोनों एरेज को एक साथ लिखोगे तो कितनी टोटल रोज हो गई, 1 2 3 एंड 4। सो जस्ट सी इन द आउटपुट, यहाँ पे कितनी रोज शो कर रहा है, 1 2 3 4। ये जो स्टार्टिंग की 2 रोज थी आपकी ए की हैं और ये क्या आपकी क्या है, बी की हैं, फाइन। तो अब आपकी शेप जो आएगी वो क्या आएगी, 4 रोज एंड 2 कॉलम्स, फाइन। तो करा क्या कॉन्कैटिनेशन ने, दो सेम साइज के सेम शेप के एरेज को एक साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब कहीं स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होगा कि अगर हम एक का साइज चेंज कर दें तो क्या होगा, तो वो भी देख लो भाई, साइज चेंज करके देख लेते हैं। जैसे अब हमने करा, इसका साइज हमने बेसिकली ये दे दिया, सेव करा और इसको रन कर दिया, ठीक है। तो रन करने पे भी क्या करा इसने, अभी हमने क्या करा है, सिंपली हमारी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो तो सेम है ना, तो नंबर ऑफ जो रोज हैं वो सेम है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आप अगर चेंज कर दो, दैट मीन्स 8 कर दिया यहाँ पे, तो क्या करेगा ये, सिंपल इसने क्या करा, आपको एक एरर दे दिया। वाई, बिकॉज आप जितने भी एलिमेंट्स ले रहे हो उसमें हर रोज में 2 कॉलम है, बट आपने यहाँ पे क्या करा, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा दिए, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा दिए, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो दैट मीन्स हमने क्या कर सकते हैं, हम रोज तो इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पहले 2 रोज ली थी, मैंने 3 रोज ली तो कोई एरर नहीं था, बट कॉलम्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं अगर आपने वो बढ़ा दिए तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एरर शो कर देगा। क्लियर स्टूडेंट्स, फाइन। तो अगर हम इतना करेंगे तो ऑब्वियसली ये सही है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रोज इसने बढ़ा दी, बट एलिमेंट का जो शेप है, कॉलम्स की जो शेप है वो सेम होनी चाहिए। क्लियर। सो सेम तरीके से आप इस एरे को कंबाइन करके देख लो, ये आपको रिजल्ट दे देगा, दैट इज 5,2। सो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, एक्सेस मेंशन कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट तो मैंने कहा ना 0 एक्सेस लेता है, तो अगर हम एक्सेस लिख भी देते हैं यहाँ पे, सपोज मैंने लिखा एक्सेस और मैंने क्या दे दिया, 0, फाइन। आई जस्ट सेव इट एंड रन इट। तो उसने क्या करा, ऑब्वियसली मुझे आउटपुट दे दिया, एक्सेस 0 पे भी क्या करता है, रो वाइज कंबाइन करता है, तो उसने रो वाइज कंबाइन कर दिया। बट अब हमने क्या करना है, एक्सेस 1 देनी है। एक्सेस 1 में क्या करता है, कॉलम वाइज कंबाइन करता है, ठीक है। तो अभी किस पे कंबाइन करेगा, कॉलम वाइज कंबाइन करेगा। तो जस्ट सी, आपके यहाँ पर क्या हुए, कॉलम वाइज एक्सेस अगर हम देंगे तो जिसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये भी आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दैट्स वाई हमने क्या मेंशन करा था, शेप जो होनी चाहिए एरे की वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी 2x2 ही एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने सेम एलिमेंट्स लिए, देन आई एम रनिंग, नाउ इट इज़ फाइन। तो क्या ध्यान रखना है, जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, दैट मीन्स 2x2 का एरे है तो दूसरा एरे भी क्या हो, 2x2 का ही हो। तो अब इसने किसके थ्रू कंबाइन करी हैं चीज़ें, कॉलम वाइज करी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो टोटल कितने कॉलम्स थे, 2 कॉलम्स यहाँ हैं और 2 कॉलम्स यहाँ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो गए। पहले इसने ये सारे आउटपुट रिजल्ट प्रिंट कराया 2 3 4 6 जो कि आपका ए वेरिएबल का था, फिर इसने प्रिंट कराया 1 3 2 4 जो कि आपका बी वेरिएबल का था, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इट्स क्लियर, रो वाइज कैसे कंबाइन करता है और कॉलम वाइज कैसे कंबाइन करता है,
फाइन. सो स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर टू ऑल कि हमने 0 एक्सेस और 1 एक्सेस पे कैसे वर्क करा है. फाइन. सो कॉनकैट फंक्शन तो इतना ही था. लेट्स कम ऑन आवर स्लाइड्स अगेन. The next function which we are going to see, that is the part of array joining, vertical stack. So give two or more existing array, we can stack them vertically using vstack. That means दो और दो से ज़्यादा जो array हैं उनको हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, हम वर्टिकली अरेंज कर रहे हैं. ठीक है. वर्टिकली का मतलब क्या होता है, आप उसको बेसिकली, तो वी स्टैक में क्या होता है, हमारे जो कंबाइन करते हैं एरे वो हम करते हैं कॉलम वाइज. फाइन. जैसे अभी हमने देखा ना एक्सेस 1, तो हम कॉन्कैटिनेट के साथ अगर एक्सेस 1 यूज कर देते हैं तो वो वी स्टैक यानी कि वर्टिकल स्टैक की तरह ही वर्क करता है. फाइन. और अगर हम वैसे नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं फंक्शन यूज करें कॉलम के थ्रू कंबाइन करने का, तो हम वी स्टैक फंक्शन यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. सो सिंटेक्स क्या है इसका, np.vstack. vstack is a function that you have to call and that is your array a and b. So in array a, if you are going to write 1 2 3 and b you are going to write 4 5 6, then what result it will give you, that we will see now practically. Just see here that. So what we have done over here, we have written two arrays जिसके साइज क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2. अब हमें करना क्या है, np डॉट हमें क्या लिखना है, वी स्टैक. फाइन. तो हमारे एरेज को कैसे कंबाइन करेगा, कॉलम वाइज. इस टाइम पे आपको एक्सेस नहीं मेंशन करने हैं, आपको जस्ट एरे मेंशन करना है. फाइन. तो मैंने क्या चेंज करा, आई हैव ऑलरेडी ओनली रिटर्न वी स्टैक और एक्सेस हटा देने हैं एंड जस्ट सेव करके इसको रन कर दो. तो आपको क्या करा इसने, आपका जो डेटा है वो कैसे कंबाइन कर दिया, कॉलम वाइज कंबाइन कर दिया. क्लियर. तो जितना भी डेटा था वो कैसे कंबाइन कर दिया, कॉलम वाइज कंबाइन कर दिया. किसमें, वी स्टैक में. फाइन. तो यहाँ पर भी हमारा डेटा क्या करेगा, कॉलम वाइज कंबाइन कर देगा. तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6. फाइन. जो स्टूडेंट्स करके देखना चाहते हैं वो अपने सिस्टम पे इसको कंपाइल करके देख सकते हैं. सो नेक्स्ट थिंग which we will cover within this joining, array joining, that is horizontal stack. In the horizontal stack, give two or more existing array, we can stack them horizontally. Horizontally means row wise. Fine. So row wise by default concatenate function करता ही है, या axis 0 भी हम लिख सकते हैं. उसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, h stack function यूज कर सकते हैं. Fine. So syntax of h stack function is similar, only you have to write the name of h stack and it will give you the result 1 2 3 4 5 6 within this example. And I am going to implement it within the example what I have written over here. What I have to make changes, I have to just do h stack, so I am writing h stack. Fine. Rest program will remain same. Okay students, then just save it and run it. Just see the output, what it is going to give you. It has combined your array row wise. So see here 2 3 4 6 2 3 4 6 1 3 2 4. So it has guided it as row wise. Okay. So just come back here. So we have covered horizontal stack and vertical stack. That is similar to your joining the things in with the help of concat function. Instead of giving axis 0 and 1, we can use horizontal stack if we want to join the array with the row wise, and if we want to join the array on column axis, then we can use v stack or axis 1. So next topic which we will cover, that is transpose of a matrix. So the transpose of a matrix is obtained by moving the rows data to the column and column data to the rows. That means ये आपके rows के डेटा को कहाँ शिफ्ट कर देगा, कॉलम में शिफ्ट कर देगा, और कॉलम के डेटा को कहाँ शिफ्ट कर देगा, रो के अंदर शिफ्ट कर देगा. क्लियर. सो इफ वी हैव एन array of shape x y, then the transpose of the array will have the shape yx.
क्यों? क्योंकि रो को कॉलम में बना दिया और कॉलम को किस में बना दिया? रोज में बना दिया. सपोज आपके यहाँ पे एलिमेंट्स है 2,3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3,2. फाइन. सो वी कैन यूज द ट्रांसपोज फंक्शन टू गेट द ट्रांसपोज ऑफ एन एरे. अगर हमें ट्रांसपोज करना है एरे का तो हम क्या यूज करेंगे? ट्रांसपोज फंक्शन यूज करेंगे. फाइन. functions or method, whatever you want to say. So see the example of this particular thing. जैसे हमने क्या करा? एरे लिया है यहाँ पर AR1 NP डॉट एरे के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का एरे पास किया है और यहाँ पे क्या कर दिया? एरे 1 में ट्रांसपोज कर दिया. क्या? एरे 1 डॉट ट्रांसपोज. दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल. और हमने यहाँ पे क्या करा? इस वेरिएबल के ऑब्जेक्ट पे ट्रांसपोज कर दिया. फाइन. तो जब आप ट्रांसपोज्ड एरे देखोगे तो आप क्या देखोगे? रोज कॉलम बन गए और कॉलम रोज बन गए. तो सेम एग्जांपल हम परफॉर्म करके देख लेते हैं. सो जस्ट हेयर आई एम गोइंग टू परफॉर्म द same example, or if I want to perform the same example, so I am just making it as comment. Might be later on we want this, so simply I am just creating comment here. Fine. So I have commented these lines and there I am having 3 elements, so in this also I am writing the same thing, 1 2 3, and here I am giving 4 5 and 6. Fine. So what I have to use here? I have to use a transpose. So I am writing transpose function, and your transpose function will not expect any parameter. So हमें इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं डालने हैं. फाइन. इसको रन करके देख लेते हैं. ओके, 1 एरर इज देयर. लेट मी चेक दिस पर्टिकुलर एरर. तो स्टूडेंट सिंपली हमें ट्रांसपोज किस एरे को कराना है, हमें उसका नाम लिखना है ना यहाँ पे. तो एरे का नेम तो मेरा ए है, सो आई हैव टू जस्ट राइट ए ओवर हेयर. फाइन. सो नाउ इट्स वर्किंग. जस्ट सी द आउटपुट, द थिंग्स 1 2 3 4 5 6 you have passed over there, and you have used the print command, so it is giving you the printed array. Afterward you have asked for printing the shape, so it is giving you 2,3, that is the shape. And the next thing which you want to transpose, तो ट्रांसपोज में अभी हमने क्या पढ़ा? रोज को कॉलम बना देगा, कॉलम्स को रोज बना देगा. तो ये रो है 1 2 3, इसको क्या बना देगा? कॉलम बना देगा. 4 5 6 भी रो है, इसको भी क्या बना देगा? कॉलम बना देगा. क्लियर. और इसको क्या लिख दिया यहाँ पे? 3,2. तो रोज क्या बन गई? कॉलम्स. और कॉलम्स क्या बन गए हमारे? रोज. किसके अंदर? ट्रांसपोज के अंदर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दैट्स इट अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड दीज ऑल फंक्शंस आर कमिंग inside your which subheading? That is joins in array. So what we have covered right till now? We have covered joins in array. So next to topic of operation on arrays we will cover in next video, that is array subsets. Fine. Thanks for watching students. Like this video, subscribe the channel and share it with your friends.